Okay, I am sharing the screen again. Okay, everybody. So what we are doing, we are looking at results which are helpful in finding the limit n tends to infinity an. Fine. So this is what we were doing. And in yesterday's class, we had discussed sandwich theorem. And since you have doubts, so I'll explain again. Suppose you have two sequences, Bn and Cn. Please mute yourself. Just a minute, beta. Okay. So you have two sequences, Bn and Cn, and your sequence An is in between. It means that An is greater than or equal to Bn and less than is equal to Cn. And limit Bn is same as limit Cn. Right? जो आगे वाला sequence है and the last sequence both have the same limits, say L. Then the limit of An is also L. That is what the sandwich theorem says. Right? So for example, you have the sequence cos n upon n. Right? So I know that this sequence is less than is equal to 1 by n. Why? Because value of cos n is less than equal to 1. And this sequence is greater than equal to minus 1 by n. Why? Because value of cos n is greater than equal to minus 1. Is that thing clear? And limit n going to infinity, minus 1 by n is 0, as well as limit n going to infinity, 1 by n equal to 0. Right? Now you have this situation that there is a sequence which is bounded by this sequence and this sequence, and both these sequences have same limit 0. So therefore sandwich theorem tells you that limit n going to infinity cos n upon n is 0. Is that thing clear? So this is sandwich theorem. So based on sandwich theorem, you can find out the limits of many sequences. So this was from yesterday's class. Let us move ahead. So the next result, I am just telling you the results which are useful. Next result says, suppose, yes Aditya, go for your doubt beta. मैम सैंडविच थ्योरम में मेरे को लेफ्ट और राइट में क्या लेना है ये कैसे पता चलेगा? बेटा ये आपको देखना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन सीक्वेंस क्या आपको मिल रहा है, ये जरूरी नहीं है हमेशा मिलेगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल इस केस में मैंने cos n के केस में आपको बता दिया, क्योंकि यू नो cos n लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 होता है. सपोज आई गिव यू दिस थिंग 1 by 2 raised to power n. राइट? सो दिस सीक्वेंस यू नो 1 by 2 raised to power n. इसका कुछ बना सकते हो आप कि ये किससे छोटा होता है? 1 से. इट इज लेस देन इज इक्वल टू 1 by n फॉर ऑलवेज, क्योंकि n छोटा है, 2 raised to power n बड़ा है. ये क्लियर है ना? एंड इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 by n. अच्छा, और इसकी लिमिट 0 है, तो इसकी भी लिमिट 0 होगी. फाइन. हमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपके पास सीक्वेंस है. अच्छा, ठीक है मैम. Okay. So the next thing is, suppose limit, next result I am telling you after sandwich. Suppose limit an n going to infinity is L and f is a continuous function. Then limit n going to infinity f of an
is f of L. Okay, so let us look at some examples इस result को use करके. So you have limit, ये निकालनी है हमने, n going to infinity, n plus 1 by n का square root, right? So suppose this limit you want to compute. Here you see an is your, if you assume that an is equal to n plus 1 by n and f of x is equal to root x. Is it a continuous function? Root x is a continuous function. Everybody knows Yes, ma'am. this, Yes, right? ma'am. So now you see here, because this root is a continuous function, so limit will go inside. So this is equal to square root of limit. यही हो रहा है ना यहाँ पे कि आपने f of an की लिमिट लेनी है. तो इसका क्या मतलब है? This is same as writing f of limit n going to infinity an. यही मतलब है बेटा. Is that thing clear? L is Yes, ma'am. limit a go Yes, an. ma'am. इसका मतलब whenever f is continuous, you can bring the limit inside. So this is limit n going to infinity, n plus 1 by n. You will write the reason because f of x is equal to root x is a continuous function. Fine. So now what is this? This is square root of limit n going to infinity 1 plus 1 by n, that is square root of 1, which is 1. Fine. I'll give you more examples so that you understand it nicely. Let us look at this example. Suppose you want to find out this limit n going to infinity 2 raised to power 1 by n. Right? Now 2 raised to power x. Is it a continuous function? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. It's a continuous function. Yes, ma'am. This is equal to, yes, 2 limit n going to infinity 1 by n. Is that thing clear? So this is equal to 2 raised to power 0, which is 1. Getting it? Let us look at more example. Suppose you have limit n going to infinity. Can you tell me something else? Suppose you have a sequence like this, sine of 1 by n, right? So इसका क्या होगा? Sine is a continuous function. Yes, ma'am. This is same as Oscillating होएगा ये. Zero. Limit. Ma'am, zero हो जाएगा. Yes, ma'am. sine is a continuous function, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Zero. So Yes, ma'am. limit n going to infinity Zero. 1 by n, By that is 0 sine 0 0. Zero. Is that thing clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So can you use this result to when you are asked to find out how to find the limits? You can use these results. Okay. Somebody is asking, Yeah. ma'am, have you any work based on previous lectures? Ma'am, the question for practice column in LMS has only the question numbers given. Could बेटा मैं आपसे शेयर कर दूंगी, मैं बोल रही हूँ क्वेश्चंस में शेयर कर दूंगी आपसे, आज कर दूंगी. Okay. Fine. So this is a result which you can use. Now the next result is L'Hopital rule. ये क्या होता है आप लोगों को ये पता है? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, I have a doubt in previous part. Yes, बेटा बोलिए. Ma'am, is there some proof that the limit, if for a continuous function, we can shift the limit Yes, बेटा, there is inside? a proof, but मैं आपको actually proof based on epsilon and definition जो हमने नहीं कराई है आपको. Okay, बेटा. If you want, you just send me a message in the group, and also please everybody send messages in the group. I will reply there. I can click the photo proof key, and you can try to understand, बेटा. Is that thing okay? Okay. Yes, But ma'am. अगर मैं आपको ऐसे बताने की कोशिश करूँ तो you can think like this. अगर a and l के पास जा रहा है, so you have, suppose this is l. Are you listening, बेटा? Yes, ma'am. Yeah. Okay. So I can tell you a little bit.
So suppose this is your an, this is n, an is going towards l, right? यही हो रहा है ना, n going to infinity. अब f Yes, continuous का क्या मतलब होता है? Continuous मतलब a nice function, है ना? Continuous function होता है वो क्या, this is a nice function. So अगर आप इस पे f लगा दोगे तो जो चीज पहले l के पास जा रही थी बस सिर्फ वो f of l के पास चली जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन ना इधर उधर नहीं लेके जाता चीजों को. डू यू अंडरस्टैंड? सो यू मे Yes, थिंक ऑफ ma'am. लाइक दैट कि क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है उसने सिर्फ क्या करना है, an पे ऑपरेट हो जाना है, f of an को f of an पे ले जाएगा, बट वो ये नहीं करेगा क्योंकि कंटिन्यूअस है. तो ये नहीं होगा कि an को एब्रप्टली कुछ कर देगा, क्योंकि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन साथ साथ चलती है हमेशा. जो f of an होगा वो भी f of l के पास ही जाएगा. But if you want an analytical proof, I can give you. You can just send me a message. Okay. Okay. So let us look at the next result, which is L'Hopital rule. मैम आपको हम लोग पर्सनल पे जैसे डाउट्स भेजे कि ग्रुप पे डाउट्स भेजे मैम? बेटा ग्रुप पे प्लीज, पर्सनल आप ma'am. सोच के देखो बेटा. देयर आर 180 स्टूडेंट्स, फिर मुझे पता ही नहीं चलता किसको रिप्लाई किया है किसको नहीं, फिर मैं करती ही नहीं. ठीक है. एंड यू हैव टू गिव मी टाइम बेटा. आई एम आल्सो टीचिंग वन मोर कोर्स, इनफैक्ट 2 मोर कोर्सेज. ओके बेटा. सो आई एम लाइक इट मे टेक टाइम. मैं आपको रिप्लाई कब कर रही हूँ, सो यू हैव टू बी पेशेंट. ओके बेटा. बट आई विल मेक श्योर कि ओवर द टाइम आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए. डोंट वरी अबाउट दैट. Ma'am, in second part, 2 raised to power 1 by n, if finite number comes, then it is always continuous or any other reason. फाइनल नंबर In 2 raised to power n, a finite number 1 comes, that's why it is continuous or any other नहीं, reason. 2 रेज़्ड पावर x तो हमेशा कंटिन्यूअस है ना. इसका ग्राफ बनाओ. 2 रेज़्ड पावर x का ग्राफ कैसे बनता है? 0 पे इसकी वैल्यू 1 है ना. 2 रेज़्ड पावर x का ग्राफ कैसे बनता है? कंटिन्यूअस फंक्शन है बेटा. ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, हमेशा वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर होगी, है ना. इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर होल आवर. इज दैट थिंग क्लियर? Yes, ma'am. ओके. सो लेट अस गो मैम टू. अगर थर्ड पार्ट में n टेंड्स टू 0 होता तो फिर हम कैसे करते हैं? हाँ ऑब्वियसली फिर यहाँ पे n टेंड टू 0 होता तो ये लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती ना. ऑसिलेटिंग आ जाता. हाँ वही ना. वो ये तब है जब ये लिमिट एग्जिस्ट करे बेटा. देखो रिजल्ट पढ़ो. अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर n टेंड्स टू 0 होता तो 1 by n की लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती ना. Yes, ma'am. Okay. And okay, that doubt we are asking, it's okay, but you have to make sure कि when we are starting sequences, there is no other limit. We always talk about n going to infinity. Is that thing okay? Yes, Fine. ma'am. You will not have any other limit because sequence का behavior check करने का मतलब है you are looking for the behavior as n is very large. Fine. Okay. So let us move ahead. L'Hopital. Okay. So L'Hopital says, जो आपको पता है कि limit x going to a f of x upon g of x, क्योंकि हमने यहाँ डेरिवेटिव लेना होता है. Suppose it is of the form infinity by infinity, 0 by 0, then this is equal to limit x going to a f dash x upon g dash x. ये होता है बेटा. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right now, Yes, ma'am. क्योंकि आपके पास क्या है, here we are having situation like this, limit n going to infinity f of n upon g of n. अब इसमें तो डेरिवेटिव का कोई सेंस नहीं बनता ना, क्योंकि n जो है वो तो नेचुरल नंबर है. Am I clear? Yes, ma'am. n is not running over real line, so you cannot have derivatives, but we have this result. ये आपका L'Hopital रूल हो गया जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है. राइट हैंड साइड पे मैं एक रिजल्ट लिख रही हूँ कि सपोज fx इज अ फंक्शन, fx इज अ फंक्शन जिसमें x जो है वो आपका डोमेन रियल है. ओके. एंड an is equal to f of n. समझ आया? दो चीजें हैं, एक सीक्वेंस है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने एक फंक्शन बना लिया जिसकी डोमेन कंटिन्यूअस है.
मतलब पूरा रियल लाइन है, then limit n going to infinity an is same as limit x going to infinity f of x. Is that thing clear? Can you see कि ये रिजल्ट होगा? Yes, ma'am. क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया है, सिर्फ उसको नाम चेंज कर दिया. आपका an was f of n, आपने f of n की जगह पे एक f of x ले लिया जिसकी डोमेन अब कंटिन्यूअस है. So limit n going to infinity will be same as limit x going to infinity f of x if it exists. So इसका मतलब जब आप ये निकालोगे, here you can write like this, limit n going to infinity f dash n upon g dash n, but in your minds it should be clear कि यहाँ पे डेरिवेटिव लेने का क्या मतलब है. Somebody may ask you that here n is just a natural number, 1 to 2, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, how you are taking derivatives? So you can explain that actually here I meant is, what I meant here is, this is equal to limit x going to infinity f dash x upon g dash x. But you don't have to write like this, you can write like this, but it should be clear to you why we are writing so. Is that thing clear? I'm नहीं समझ रहा मैम. मैं अभी क्वेश्चन करा रही हूँ तो आपको समझ आएगा. यस बेटा, Please repeat. yeah, I am saying कि L'Hopital rule क्या होता है कि whenever you have a fraction and you are taking a limit and suppose it is of the form infinity by infinity or 0 by 0, then you can write it as limit x goes to a f dash x upon g dash x. ये clear है बेटा? Yes, no? ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Now अब हमारे पास सिचुएशन कैसी है, जो हमारी सीक्वेंसेस की सिचुएशन है वो ये है कि हमारा तो n goes to infinity fn upon gn है और n क्या है, नेचुरल नंबर. तो f dash n का क्या मतलब बनता है ना? क्योंकि डेरिवेटिव तो तभी लोगे ना जब आपका जो वेरिएबल है, रनिंग वेरिएबल, वो कंटिन्यूअस हो. मतलब ऐसा थोड़ी है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3. आप डेरिवेटिव के लिए यू शुड हैव एन इंटरवल, तभी तो डेरिवेटिव निकालोगे किसी पॉइंट पे. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो पूरा कंटिन्यूअस डोमेन होना चाहिए. तो उसके लिए मैं ये कह रही हूँ कि इस लिमिट का मतलब क्या है. ये सेम लिमिट an n going to infinity can be written as limit x going to infinity fx. Is that thing clear now? So Yes, इसको ma'am. you can write like this, but in your mind you should have a picture like this कि ये हो रहा है एक्चुअल में. Okay, so let me do some problems, उससे आपको समझ में आएगा. Question: find limit n going to infinity log n upon n, right? So जब आप इसको लिमिट निकालोगे, what is log infinity? Infinity upon infinity फॉर्म बन रहा है बेटा. So यहाँ पे you will write it as limit n going to infinity, just derivative 1 by n, नीचे 1, L'Hopital rule. But आपको मैं ये कह रही हूँ कि आपने ये L'Hopital rule तो लगा दिया, but you should have this thing clear कि derivative क्यों कर रहे हैं. तो if you want to complete the step, this is same as limit x going to infinity log x upon x, which is same as limit x going to infinity 1 by x upon 1, which is 0. But you can skip these steps. You can straight away write like this, but it should be clear to you. Is that thing clear? Yes. Yes. अब okay बेटा, let us do one more problem, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. Yes, ma'am. At last, why we do not write undefined? Why you write 0? यहाँ पे बेटा ये अनडिफाइंड है ना. अब 1 by n upon 1, n going to infinity 1 by infinity 0 हो जाएगा ना. मैम बट हमें बताया था 1 by infinity अनडिफाइंड होता है. कहीं पर भी लिमिट के क्वेश्चन में उसके बाद 0 नहीं लिखना चाहिए. क्यों बेटा? 1 by infinity is always 0. Infinity by infinity is undefined. 0 by 0 is undefined. वो 1 by approaching infinity को actually हम 0 बोलते थे और हमें बोला था कि 1 by infinity is not defined. या फिर हम यहाँ तो एग्जैक्टली नहीं. Approaching infinity. ठीक है, नहीं बेटा, आप क्या कर रहे हो, इससे ध्यान से सोचो, इसका क्या मतलब है.
इसका मतलब है व्हाट हैपेंस टू दिस नंबर व्हेन n इज वेरी लार्ज. टेल मी. जो अभी मुझसे डाउट पूछ रहे थे वही बताएंगे. व्हाट हैपेंस टू दिस नंबर व्हाट हैपेंस टू दिस नंबर 1 by n व्हेन n इज वेरी लार्ज. किस इंफिनिटी इक्वल हो ही नहीं सकता ना बेटा. 1 by इंफिनिटी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कभी भी इंफिनिटी अचीव ही नहीं कर सकते आप, सिर्फ उसके पास पहुंचोगे. कोई कह रहा है कि 10 लाख पे इंफिनिटी है, कोई कह रहा है 15 लाख पे है, कोई कह रहा है 1 करोड़ पे है. तो इंफिनिटी तो है ही नहीं ना कहीं पे भी. देयर इज नो वे यू रीच अप टू इंफिनिटी. तो इसका मतलब क्या है, यू शुड अंडरस्टैंड. इसका मतलब क्या है कि वेयर दिस नंबर रीचेस व्हेन n रीचेस इंफिनिटी, दैट नंबर रीचेस टू 0. इसके इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कुछ भी इक्वल हो जाएगा. ये नंबर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा. हो सकता है ये नंबर कभी 0 के बराबर? टेल मी. नो मैम. नहीं होगा ना बेटा. आप n को कुछ भी डाल दो. मैंने n को 10 की पावर 100 डाल दिया, तो ये मेरा नंबर ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर -100. बहुत छोटा, बट अभी भी 0 नहीं हुआ. मैंने n को 10 की पावर 200 डाल दिया. मैं कह रही हूँ मैं इंफिनिटी के पास पहुंच रही हूँ, बट मैं पहुंचूंगी तो कभी नहीं ना. तो ये इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि ये इक्वल है. इसका मतलब ये लिमिट की डेफिनेशन ही यही है बेटा, कि वेयर यू विल रीच व्हेन n विल रीच टू इंफिनिटी 0. n विल नेवर रीच टू इंफिनिटी, दैट इज व्हाई यू विल नेवर रीच टू 0. सो आपको ये बताया होगा कि ये नहीं लिखना है ना, ये Yes. नहीं लिखना. दिस यू कैन से कि इट इज रॉन्ग समहाउ, बट इसमें और इसमें फर्क है. ओके. इसमें Okay. क्या है, इसमें लिमिट लिखा हुआ ना, इसका मतलब वेयर दिस नंबर विल रीच व्हेन n रीचेस इंफिनिटी टू 0. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन राइटिंग लाइक दिस. बेटा एम आई क्लियर? जिसका डाउट था, Yes ma'am. या कैन बी मूव हेड. Yes. करो एक क्वेश्चन और. So you have 2 raised to power limit n going to infinity 2 raised to power n 5n divided by 5n. Again this is infinity by infinity form, right? So what you will do, you will just, this is equal to limit n going to infinity. Beta am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो सकता है ना इंटरनेट चला जाए. इंफिनिटी आ जाएगा. Okay, Infinity so आ अगर रहा है इंटरनेट मैम. चला गया तो you have to join back. I will connect with my mobile in case it goes away. Okay, so this is, you will take the derivative. ऊपर क्या आ जाएगा, 2n log 2 divided by f. So what is the limit? Infinity. This goes to infinity. You will say this is a divergent sequence. तो आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है, Yes is ma'am. 2 raised to power n upon 5n a convergent or divergent sequence? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम में. सो यू विल जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट इट्स लिमिट. इट इज डाइवर्जेंट. एम आई क्लियर? Yes, ma'am. Okay, tell me, is n raised to power 1 by n convergent or divergent? Ma'am, convergent to A. Okay, so let us find out the limit. इसमें आप क्या कर सकते हो, L is equal to limit मैम n going to कन्वर्जन टू 1 है ये infinity. तो. क्या मैम बेटा? कन्वर्जन टू 1 है ये तो. कितनी होती है लिमिट? Last example. मैम दिस इज कन्वर्जन टू 1. या सो कैसे निकालोगे लिमिट? मैम लिमिट हम लोग Infinity की power 0. ऊपर ले जाएंगे n टू द पावर. We'll ले take जाओगे? log. Ma'am, we'll take log. या यू कैन टेक लॉग और भी कुछ कर सकते हो. फर्स्ट रिजल्ट बताया था. लिमिट n गोइंग टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर log ऑफ n 1 by n, ऐसे भी लिख सकते हैं. Yes, ma'am. कोई Yes प्रॉब्लम ma'am. नहीं है ना बेटा, e और log कैंसिल हो जाएंगे. सो दिस इज लिमिट n गोइंग टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर log n by n. अब क्योंकि e रेज़ टू पावर कंटिन्यूअस है, सो दिस इज सेम एज e रेज़ टू पावर लिमिट log n by n. Is that thing clear? Why? Because e raised to power x is continuous. Am I audible? अगर इंफिनिटी भी हो तो डाइवर्जेंट. Am I audible, beta?
Yes, ma'am. ओके फाइन. सो आपके पास ये क्लियर है सबको? e raised to power x is a continuous function. That is why limit will go e raised to power limit. Inverse not visible, ma'am. मैम Sorry? स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी. मैम Okay, स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी. Yeah. Just wait for a minute. I'm convergent. Ma'am, what would be the answer for this? Yeah, I'm Convergent to 1. okay. This is Convergent to 1. e raised to power. What is this limit? Just now we got it from L'Hopital. This was 0. This is 1. So this sequence here, therefore, n raised to power 1 by n is a convergent sequence to 1. हमें एक चीज पूछनी थी आपसे. Yes, beta. जैसे हमने पहला वाला रिजल्ट लगाया था कि n रेज़ टू पावर x कंटिन्यूस है, तो उसमें हम 1/n का लिमिट ले जाएं. नहीं बेटा, ये तो वैसे भी 0 ही आ रहा है. जैसे ये अच्छा, n ओके या दैट यू कैन डू, बट बेटा क्योंकि ये n है ना, n इन्वॉल्व है ना बेटा. मैम लेकिन n रेज़ टू पावर n भी तो कंटिन्यूस ही होगा. या बट वो फिक्स होना चाहिए ना दूसरी चीज, अदरवाइज तो आप उसकी लिमिट अलग निकाल रहे हो, इसकी अलग निकाल रहे हो बेटा, वो बाय चांस इसमें सेम आ रहा होगा. यस मैम. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. क्योंकि यहाँ n इन्वॉल्व है ना बेटा, डेफिनेशन में n नहीं होना चाहिए. मैम लास्ट क्वेश्चन में एक डाउट है. यस बेटा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, एवरीबॉडी म्यूट योरसेल्फ. यस मैम 2 raised to power n by 5 raised to बेटा, power प्लीज n. म्यूट योरसेल्फ. यस अवनी, गो अहेड बेटा. मैम 2 raised to power n by 5 raised to power n को हम 0.4 raised to power n भी तो लिख सकते हैं. 5 raised to power n नहीं है बेटा, वो 5n है. अच्छा सॉरी. ओके Ma'am. ठीक है. ओके, लेट अस डू वन मोर प्रॉब्लम. मैम एक मिनट में एक डाउट था इसमें, जो आपने अभी क्वेश्चन दिया था n रेज़ टू पावर 1 बाय n वाले में. यस बेटा. मैम इसमें क्या जरूरी है कि जस्ट अ हम लोग. मिनट, मुझे म्यूट करने दो, आप दोबारा अपने आप को अनम्यूट करना. ओके या नाउ गो अहेड. मैम, इज इट नेसेसरी टू टेक लॉग? लाइक कांट वी यूज द एबीसी थ्योरम इन दिस? कौन सी थ्योरम बेटा? मैम एबीसी थ्योरम ऑफ लॉग, जिसमें लाइक हम लोग बेस को सेम रखते हैं और जो जिस पे रेस करते हैं और जो लॉग जिसका लिया होता है उन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं हम लोग. कहाँ पे कह रहे हो आप? इस पे ना, इस क्वेश्चन में. यस मैम, आपने जैसे लॉग ले लिया e टू द पावर log n टू द पावर 1 by n ले लिया मैम आपने. हाँ, तो मैम इसमें हम लोग e और n को चेंज नहीं कर सकते मैम, लाइक उन दोनों की पोजीशंस को. नो, हम वो e और 1 by n को कर सकते हैं. चेंज करेंगे भी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे. e और सेम इक्वेशन आ e जाएगा. और 1 by n को चेंज कर सकते हैं ना मैम हम. मैम आई विल I'm not डिस्कस दिस getting डाउट what you are ऑन द ग्रुप. saying. मैम आई विल डिस्कस दिस डाउट इन हम द लॉ ग्रुप. की प्रॉपर्टी होती Okay, है. maybe we can discuss it later. ठीक है, हाँ, yes, but ma'am. whatever you are doing, ultimately same ही चीजें होंगी. Obviously, I am not saying this is a unique path. Okay, there may be other things which you can do if they are right. Okay, you can discuss with me कि क्या exactly आप कह रहे हो later on. Yes ma'am, I'll discuss it later. So now tell me this: limit n going to infinity x raised to power 1 by n for x greater than 1. Tell me. 1. क्या होगा ये? Again, because x raised to power something is a continuous function, so this is x. X आपका fixed है, right? X limit n going to infinity 1 by n. So this is x raised to power 0, which is 1. So this is convergent to 1. Ma'am. Yes. Yes, beta. Am I audible? और डाइवर्जेंट और किस केस में होता है? आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी. Okay, next question. डाइवर्जेंट और किस केस में होता है? मैम हम लोग ने ये वाला काम ऊपर वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं करता? n रेज़ टू द पावर 1 by n बेटा मैं वही कह रही हूँ ना, वहाँ पे आप ये नहीं कर सकते ना, n की पावर 1 by n लिमिट n गोइंग टू इंफिनिटी. ये वाला n आपने छोड़ दिया, ऊपर वाले की लिमिट ले ली.
ठीक है Okay, मैम। यहाँ पे x is a fixed quantity. यस मैम, समझ गया मैम। Got it? Yeah. यस Okay, मैम। so you tell me, prove this, that limit n going to infinity x raised to power n is 0 for mod x less than 1. कैसे करोगे इसको? Simple. This is x limit n going to infinity n, which is infinity. So a number less than 1 raised to power infinity goes to 0. क्यों? क्योंकि नंबर अगर 1 से छोटा है, you keep on increasing the powers, it will keep on decreasing. You know, right? Yes, ma'am. Point हम 1 ये का लिखकर square will be. एक्सप्लेन करना है। Yes, बेटा. हम ये सब लिखकर एक्सप्लेन करना होगा ना मैम, क्योंकि मैथमेटिकली तो ऐसा कोई है नहीं तरीका। मैथमेटिकली भी कर सकते हो बेटा आप इसको। फॉर एग्जांपल आई कैन डू लाइक दिस, बट अगर आपको ये सिंपल, वी एक्सपेक्ट कि आपको लिमिट निकालनी आती है, पता है, बट इन केस आपसे पूछी जाती है एक्सप्लेनेशन, तो आपकी मर्जी, आप ऐसे एक्सप्लेन कर दीजिए जो मैं बता रही हूँ। अदरवाइज अगर एलिगेंटली आप इसको करना चाहते हो तो लेट लिमिट n going to infinity x raised to power n be L. Now take log, या फिर इसको लिख लो जैसे अभी मैंने किया था. So this is same as limit n going to infinity e raised to power log of x raised to power n, right? So this is equal to, got it beta? So this is e raised to power limit n going to infinity n log x. Okay? अब x क्या है? लेस देन 1, तो log x क्या हो जाएगा? अगर x लेस देन 1 होता है, log x नेगेटिव होता है. Am I clear? So this, ये नेगेटिव हो गया, ये इंफिनिटी हो गया. So e raised to power minus infinity, which is 0. 0. Got it? Okay, ma'am. Thank you. Yeah. Okay, let us do. I'm just doing the problems so that आपको easy हो जाए बाकी questions करना. Limit n going to infinity 1 plus x by n raised to power n. Can you tell me what this limit is? Ma'am, in exam we would get subjective or objective questions or e की both. power E to the power Subjective x. की पावर e की x power E की power कैसे x आता से है ये? conversion. हम 1 की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म है. e की पावर हाँ, इसको अभी जो हम मैं करा रही हूँ approaching उससे प्रूव 1 करो की बेटा. power approaching infinity. इसको लिखो लिमिट n गोइंग टू इंफिनिटी. बेटा अपने फॉर्मूलाज जो याद कर रखे हैं प्लीज डोंट यूज दैट. अभी हम वो ऑब्वियसली याद आपको है तो अच्छी बात है, बट अभी हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं ना. So you have to move ahead. फॉर्मूलाज आपको पता है, that is right. So I will write like this. Is that thing okay? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Now Yes, ma'am. again because Yes, f is ma'am. continuous, so e raised to power limit n going to infinity, this will be n आगे आ जाएगा log of 1 plus x by n, right? So this is e raised to power. अब इसकी लिमिट कैसे लोगे? बताओगे ये लिमिट क्या आ रही है? n इंफिनिटी है, ये इंफिनिटी बनेगा, ये क्या बनेगा? ये 0 बन रहा है. हम 0. अनडिफाइंड फॉर्म है. मैम So उसके this is नीचे जाएंगे फिर 0. limit n going to n कर देते हैं infinity log of 1 plus x by n divided by 1 by n. 1 upon n. Yes, ma'am. सबको पता है ना ये? Now Yes, this form ma'am. is 0 by 0 form. तो l'Hopital लगेगा. Yes, ma'am. Yes, So ma'am. this is limit n going to infinity. l'Hopital लगाइए 1 upon 1 plus x by n into इसका derivative. What is that? Minus x by n square divided by minus 1 by n square. Clear? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. क्लास का टाइम हो गया. ओके नहीं 3:30 तक है ना. ओके फाइन फाइन, वी हैव 5 more minutes. प्लीज याद करवा देना क्योंकि नेक्स्ट क्लास होती है ना. सो यहाँ पे देखिए n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. फाइन. Yes, ma'am. और Yes, ma'am. n गोइंग टू इंफिनिटी ये 0 बनेगा, Yes, ma'am. राइट? सो व्हाट यू गेट, e रेज़्ड टू पावर ये 0 हो गया, 1 plus 0 minus minus x. ये देखो जो आपने याद किया हुआ है. डिड Yes, यू ऑलरेडी ma'am. नो द प्रूफ? पता था आपको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. पता था तो गुड. ओके, बट Yes, अदरवाइज ma'am. आपने ये नहीं लिखना कि मैम, ये नहीं लिखना एग्जाम में कि 1 की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म है तो e रेज़्ड पावर x है, जो भी आपने याद किया हुआ है. टू प्रूव इट लाइक दिस. इज दैट थिंग Okay, क्लियर? ma'am. Yes, ma'am. कैसे? प्लीज एक्सप्लेन अगेन. ओके बेटा, आई कैन एक्सप्लेन अगेन. ये देखिए आपके पास
यही वाला क्वेश्चन कह रहे हैं ना जो भी पूछ रहे हैं अभी, ये इस चीज को कैन आई राइट लाइक दिस e रेज़ टू पावर log, क्योंकि वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, वॉट एवर दिस नंबर इज, वो मैंने लिख दिया, राइट? ऐसा क्यों किया? क्योंकि आई नीड समथिंग टू सेपरेट दिस एंड दिस, एंड log विल हेल्प मी इन डूइंग दैट। अब इसका क्योंकि log ऑफ a रेज़ पावर b इज पावर आगे आ जाएगी इनटू log ऑफ 1 प्लस x बाय n, राइट? अब इसको मैंने, क्योंकि ये जीरो इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म था, तो n को मैंने 1 बाय n लिख दिया ऐसे, राइट? अब ये आपका 0 बाय 0 फॉर्म बन गया, तो आपने उसके बाद लॉपिटल लगा दिया, राइट? उसके बाद यू गेट दिस लिमिट e रेज़ टू पावर x। यस बेटा, ये n को हम log के अंदर कैसे ले गए? क्या बेटा? n को log के अंदर कैसे ले गए हम? नहीं, log के अंदर नहीं लेके गई बेटा मैं, डिवाइडेड बाय 1 बाय n है। पहले बाहर आ गया वो, है ना, आगे आ जाता है ना, log a b आगे आ जाता है। यस मैम। फिर वो नीचे क्या है बेटा, log ऊपर अलग पड़ा है, 1 बाय n लिखा है मैंने इसको, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट किया है। अच्छा, नहीं समझ गया। मैम जो x बाय n है वो क्या 0 हो गया मैम यहाँ पे ना? हाँ बेटा, n गोइंग टू इंफिनिटी है ना, x तो फिक्स्ड है। ओके मैम, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। x इज अ फिक्स्ड नंबर। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। आप लोग सब खुद ढूंढोगे, अपने आप करोगे। x रेज़ टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इज 0 फॉर एनी n। ओके, दिस इज योर होमवर्क, एवरीबॉडी विल डू इट। ओके मैम, जो उसमें 1 प्लस एक्स अपॉन एन था, अगर हमने बाइनोमियल में पढ़ा था कि जो x बाय n बहुत स्मॉल होता है, तो हम उसका जो उसकी पावर होती है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं x बाय n इंटू n, तो वो दोनों कट जाएंगे n। क्या बेटा? ऐसे 1 प्लस h की पावर n होती थी मैम, तो अगर h बहुत स्मॉल होता तो हम 1 प्लस nh लिख देते थे। ऐसे इसमें नहीं कर सकते, 1 प्लस एक्स बाय n को जो उसकी पावर है इंटू n से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इस पे बाइनोमियल लगाना चाहते हो? इस पे? यस, कहाँ पे लगाना चाहते हो? यहाँ पे बाइनोमियल? एम आई राइट? हेलो, आर यू देयर? यस मैम। तो आप यहाँ पे लगाना चाहते हो बाइनोमियल बेटा? यस मैम। तो ट्राई इट, करो ट्राई, उससे भी हो जाएगा। लगा के करके दिखाना मुझे, ठीक है? 1 प्लस n इंटू एक्स बाई एन, ठीक है? उससे आपकी सीरीज बन जाएगी e रेज़ टू पावर x की। फाइन, इज दैट ओके बेटा? हम जैसे हम बाइनोमियल लगाएंगे 1 प्लस एक्स बाय एन है, हमने n इंटू एक्स बाय एन बनेगा ना? बाय एन बहुत स्मॉल टर्म है, उनके केस में 1 प्लस जब भी स्मॉल x बाय n स्मॉल, हाँ, बेटा तो अभी उसको कुछ मत करो, आप सिंपल बाइनोमियल लगाओ, n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल x बाय n का स्क्वायर एंड सो ऑन। फिर इनकी लिमिट्स निकालो, ये तो कैंसिल हो गया। n इंटू n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर की लिमिट 1 आ जाएगी, x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल e रेज़ टू पावर x की सीरीज बन जाएगी आपकी। ओके, वही आंसर आएगा। सो देयर इज नॉट अ यूनिक वे टू डू एनीथिंग, सो देयर आर मेनी वेज एंड यू आर फ्री टू गो विद एनी मेथड। सो आई एम नॉट सेइंग कि यही करना है, इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स हैं, इफ यू ट्राई दैट इज अ गुड थिंग। गॉट इट बेटा? मैम, जो आपने क्वेश्चन दिया है बुक में, बेटा ये बाद में डिस्कस करना, अभी आप करना इसमें। दिस इज फॉर एनी x, सॉरी नॉट n, फॉर एनी x। ओके, सो लेट मी राइट डाउन मोर क्वेश्चंस, अभी हमारा 1 ही मिनट बचा है। सो यू विल डू log ऑफ, चीज बता दीजिए बस मैम, हाँ जी, जो एलएमएस पे मैम जो हमारे क्वेश्चंस के नंबर पड़े हैं थॉमस एंड फिनी के लिए, हम लोग सिर्फ वही कर सकते हैं ना मैम अभी, मतलब? हाँ बेटा, यू कैन ट्राई, डोंट लिमिट योरसेल्फ, जो आपको लगता है कि मैडम ने क्लास में करा दिया है ना? जी मैम। मैम ने एक्चुअली उसमें कुछ क्वेश्चन से लाइक वो समझ नहीं आते, तो मतलब आपने पढ़ाया नहीं होता, इसलिए बस कुछ क्वेश्चंस कईयों ने मुझे वो भी किया था कि वो समझ नहीं आ रहे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने नहीं करने हैं, वो आपको आइडिया लग जाएगा ना, जो मैंने बिल्कुल डिस्कस नहीं है क्लास में, वो आपने नहीं करने हैं। जो मैंने डिस्कस किया है वो आपने करने हैं। ये सारे करोगे जो मैं लिख रही हूँ? ओके मैम। आई विल अपलोड अभी, अगर आपसे नोट ना हो पाए तो मैं अपलोड कर दूंगी, राइट? ये सब आपने प्रूव करना है जो मैं लिख रही हूँ। लिमिट n गोइंग टू इंफिनिटी माइनस 1 बाई 2 रेज़ टू पावर n इज 0, लिमिट n गोइंग टू इंफिनिटी n माइनस 2 अपॉन n रेज़ टू पावर n इज। मैम इन सेकंड क्वेश्चन log x स्क्वायर है n स्क्वायर n हाँ।
मैम वो लॉग है या कॉस है? कहाँ पे बेटा? सेकंड। लॉग, सॉरी बेटा है एक्चुअली ये पेन जो है, सॉरी फॉर द राइट, लॉग है हर जगह है ना, कॉस नहीं है अभी। 100 raised to power n upon n फैक्टोरियल, ये क्या आएगा? मैम एक मिनट। हाँ बेटा मैं अभी अपलोड कर दूंगी, डोंट वरी अगर आप नोट नहीं कर पाए ना, इट्स ओके। मैम यस मैम मैंने आपकी ना वेबसाइट के ऊपर ब्राउज किया था मैम, मुझे सीक्वेंस एंड सीरीज के वहाँ पे लेक्चर्स नहीं दिख रहे मैम। बेटा आई एम एक नॉट एबल मिनट टू फाइंड मैम। है मैम मेरे को वहाँ पे ना मतलब वहाँ पे बहुत सारे ना सेक्शन थे, एक वहाँ पे आईएएस का था, यूपीएससी का वहाँ नहीं पे नहीं नहीं था। नहीं, मैंने जो आपका, एक मिनट बेटा मैं लिंक शेयर करती हूँ, जस्ट अ मिनट। वो आपने वही लॉगिन करना है, वो आप उसमें टीचिंग्स में जाओगे, मैंने एलएमएस पे लिंक शेयर कर रखा है बेटा, एलएमएस का अकाउंट है आपके पास ना? हाँ जी मैम। उसमें मैंने लिंक शेयर कर रखा है आपका EC 1 to 5 के लिए, स्टिल आई एम जस्ट शेयरिंग। मैम मैं EC 6 से हूँ मैम। हाँ हाँ 1 to 8 के लिए, सॉरी 8 के लिए पूरे आपकी क्लास ना, मैं यहाँ पे आपको ये लो लिंक, देखो खोलो इसको। ओके बेटा टाइम हो गया नेक्स्ट क्लास का। ओके मैम बेटा 7th क्वेश्चन में 100 लिखा है। Thank you. हाँ 100 लिखा हुआ है, Thank you, 100 raised to ma'am. power n upon n factorial, On 8th में Thank क्या? you, ma'am. n plus 1 Have a upon nice n day, minus ma'am. 1. Bye. Okay Thank बेटा, you, ma'am. have a nice day everybody। Have a nice day, Ma'am, ma'am. one scroll up. Okay, ma'am. Thank you, बेटा ma'am. एक्चुअली नेक्स्ट क्लास है ना, टीचर लॉग इन कर रहा है। ओके Ma'am, Friday को छुट्टी मिली? फ्राइडे की छुट्टी होगी हाँ बेटा, ठीक है, बट आई डोंट नो, यू विल गेट द नोटिस। ओके या Thank you, ma'am. ओके बेटा, हैव अ नाइस